Good afternoon, students. In the previous lecture of computer graphy, we discussed about what is scan conversion and then how the points are to be drawn or any object can be drawn by using the scan conversion. We discussed about the point conversion and second one the straight line conversion, and there are the three algorithms which are to be used for the straight line, that are the direct use of line, second one the DDA, and third one is the Bresson-Mann's algorithm. In the previous lecture, we discussed about the direct use of line algorithm. In that algorithm, we need to know about the equation of the line, then calculate the slope of the line by putting some values of the starting point into that line, into the equation of the line, and then by assuming the values of x, we calculate the value of y, and we continue calculating or assuming the values of x and calculating y till the last point is to be reached, so that we can calculate all the intermediate point. But next one is, now we discuss about the DDA line conversion algorithm, which is the most important question in the straight line algorithms. So, DDA is the digital differential analyzer which are used for the rasterization of the lines, triangles, and the polygons. It is an incremental method of scan conversion of line. In this method, the calculation is performed at each step by using the results of the previous step. This is one of the important line in the previous algorithm in the straight line. By assuming the values of x, we calculate the values of y. But in this method, the calculations are to be performed at each step by using the results of the previous step. So, the digital differential algorithm is, first of all, as in the straight line algorithm, we need to know about the equation of the line, that is m equals to mx plus v. Next, we need to calculate the slope of the line, that is m equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Or we can say that m equals to delta y divided by delta x, or m equals to delta y is also denoted as delta dy divided by dx. Or we can also write it as m equals to y endpoint minus the y starting point divided by x endpoint minus the x start point. सो बुक्स में किसी भी तरह लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना. तो दीज आर द सेम. डेल्टा वाई से भी लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन भी, वाई एंड माइनस वाई स्टार. सो द डेल्टा वाई वैल्यू, फ्रॉम दैट वैल्यू, if we have the value m equals to slope of the line is m equals to delta y divided by delta x, then we can also calculate the delta y from this equation by delta y equals to m डेल्टा एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई इक्वल्स टू m क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स. क्लियर. नेक्स्ट डेल्टा एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से. डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, m डिवाइड m, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. क्लियर. तो यहाँ पर डेल्टा वाई क्या होगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाई m. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड x2 माइनस x1 डिवाइड y2 माइनस y1. सो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज लिखा है, तो डिवाइड कराना है. क्लियर. यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो ना, कि अगर m इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया m इंटू डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एम चला गया. ठीक है. क्लियर. इस स्टेप के बाद हम डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग एम. यहाँ पर डिवाइड का साइन आना है. सो this is the plane in x and y coordinate. In between there is some line drawing or cutting, and this is the b point, that is the intercept point, that is intercepting the y coordinate.
सो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में नहीं आता, तो डैट पॉइंट इज बी जो इंटरसेप्ट करे वाई के साथ। अगर यहाँ पर वैल्यू आती तो एक्स इंटरसेप्ट होता। देन वी कैन ऑल्सो कंक्लूड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। वी ऑलरेडी नो डैट वट एक पॉलीगन थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है, क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है कि जो हाइपोथेसिस की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, उसके परपेंडिकुलर जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं वैल्यूज़, उनके स्क्वायर रूट के का एडिशन जो होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो वैल्यू आएगी एंड हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है, दिस वैल्यू स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू स्क्वायर होल अंडर रूट बिकम्स द हाइपोथेसिस वैल्यू। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, किसके डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, हाइपोथेसिस की वैल्यू है। सो इट इज़ सिंपली comparatively to those values. Here the points are to be drawn. There is a straight line. There are the point x1 and x2, x1 and y1 and x2 and y2. We can simply represent that values as this. Next we discuss about the main conditions that we need to check in this algorithm are when we calculating the m value. Then the first condition we need to check if the slope of the line m is greater than 1, then x k plus 1 क्या है, इंक्रीमेंट वैल्यू, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू x का फर्स्ट अगर इनिशियल 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट। सो अगर स्लोप ऑफ द लाइन जो निकाली है दैट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 से है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे to calculate the x coordinate and the y coordinate. That is x coordinate के लिए क्या है, x plus 1 divided by m, y coordinate next coordinate calculate करने के लिए है y के plus 1. So if the slope of the line is less than 1, then x के coordinate next कैसे calculate करना है, x के plus 1, y के plus 1, y के coordinate कैसे calculate करेंगे, y के plus m. So अगर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 1 आती है देन कंडीशन क्या होगी, दोनों ये इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वी यूज़ द इक्वेशन एक्स के प्लस 1 एंड फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई वी यूज़ द इक्वेशन वाई के प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ वाई के अलग है, प्लस 1 अलग है। क्लियर? So these are the simple representation. This is the first representation if the slope of the line is greater than 1. Second representation if the slope of line is less than 1, and third condition when the slope of the line equal to 1. So this is the algorithm for calculating the intermediate point by using the DDA algorithm. So in this we know that the value of any slope is equal to y equals to mx plus v. So the next coordinate values we calculate y1 equal to mx1 plus v, then y2 equal to उसके next जब calculate करेंगे वो क्या होंगे, mx2 plus v. x1 गिवन होगा, y1 गिवन होगा starting point and the ending point तक हमने जाना है by calculating the intermediate point. सो नेक्स्ट x2 जब y2 की वैल्यू अगर निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगी, mx2 प्लस b। क्लियर? यहाँ पर x2 यहाँ पर क्या है, x1 प्लस 1। क्लियर है? x का आगे इंक्रीमेंट है, सो प्लस b। सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, mx प्लस 1 m इंटू 1 क्या होगा, m प्लस b। नाउ बाय कंबाइनिंग mx प्लस b द इक्वेशन बिकम्स y1। यहाँ पर mx को प्लस b को अलग से लिख लिया तो वो क्या बन जाएगा, y1 इक्वल्स टू mx प्लस b, डैट बिकम्स y1
and plus m. So y2 becomes y1 plus m and y3 becomes next y2 plus m. एज इट इज़ हम ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर ये वाली चीज़. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ द एल्गोरिथम जो आप फॉलो करोगे. स्टेप 1 के लिए क्या है कि आपको एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और एंडिंग कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. सो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट के लिए क्या है कि पहले dx कैलकुलेट करना है x2 माइनस x1 करके. ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस है. अगर नेगेटिव भी कोई वैल्यू आती है तो बाई यूजिंग द मॉडुलस दैट बिकम्स द पॉजिटिव वैल्यू. सो नेक्स्ट वन इज़ द dy के लिए y2 माइनस y1. नेक्स्ट क्या है, चेक करना इफ dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू dy. अगर dx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू dy आ गया देन लेंथ जो है, एक वेरिएबल लेना हमने लेंथ की वैल्यू क्या बन जाए, जो dx की वैल्यू है अगर ग्रेटर आता है. एल्स अगर dy ग्रेटर है तो लेंथ क्या बन जाए, dy बन जाए. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, जो x1 y1 गिवन होंगे. क्लियर. एंड यहाँ पर एक और वेरिएबल यह है i, जो इंक्रीमेंट जैसे जैसे हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते जाएंगे i की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी. सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ i इक्वल्स टू 0. सो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द डेल्टा x, जो हमारे पास डिस्टेंस फैक्टर आएगा. डेल्टा x कैसे कैलकुलेट करना है, जो आगे हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे. डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय लेंथ कौन सी होगी, अगर dx ग्रेटर होगा तो वो वाली लेंथ, अगर dy ग्रेटर होगा तो dy वाली लेंथ. सो x2 माइनस x1 जो लेंथ आई डिवाइड उसे कर देना उसके साथ. एंड डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय लेंथ. देन by calculating delta x and the delta x and delta y की वैल्यू अब ये वाली यूज़ करनी है. देन वाइल कंडीशन लगी i लेस देन इक्वल टू लेंथ का कौन सी है, जो यही कैलकुलेट की है. क्लियर. देन वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ, जब उस लेंथ तक ना पहुंच जाए तब तक कैलकुलेट करते जाना है. देन x इक्वल्स टू x, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो हम कैलकुलेट करें. x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x, जो डेल्टा x ये वाली है. एंड y इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y, ये वाली है. देन i को इंक्रीमेंट कर दो. नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी, जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट निकाले हैं वो वाले हम अब लेंगे. तो नेक्स्ट वाले कैलकुलेट करते जाएंगे. कब तक कैलकुलेट करते जाना है, जब i की जो लेंथ है वो i की जो वैल्यू है लेंथ के इक्वल नहीं आ जाती, या उसके लेस देन नहीं आ जाती, विच मीन्स डैट जो एंडिंग पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन हो गए. तो एंडिंग पॉइंट जब तक नहीं आ जाते तो तब तक हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट पॉइंट जो है कैलकुलेट करते जाना है. दिस इज़ द सिंपल एल्गोरिथम. बुक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, वहाँ पर 0.25 करके भी लिखा हुआ है, साइन वैल्यूज़ लिखी हुई है. तो सिंपल मेथड सेम है. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम. You can follow this and calculate the result of any equation by using this algorithm.